पूरे विश्व के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। क्षय रोग के उन्मूलन के लिए सरकार और निजी संस्थाएं नियमित रूप से कार्य कर रही है। क्षय रोग दिवस के अवसर पर आज श्री विजयपुरम के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में टीबी मुक्त भारत अभियान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100 दिनों के मुहिम का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रशासन के आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर वंदना राव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एच.एम. सिद्धराजू, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर लाल, उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रॉय के अलावा प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग और प्रतिभागी उपस्थित थे। सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। शुरुआत में डॉक्टर लाल ने टीबी के बारे में विस्तार से मल्टीमीडिया प्रस्तुति दी। Millions of people have died due to tuberculosis, but only 144 years back, when Dr. Robert Koch discovered this bacteria, the world came to know that this disease is because of this bacteria. Microscopically, it appears like pink rods, as you can see in the picture. So the enemy was discovered only 144 years back, the enemy which was responsible for deaths of millions and millions of people, where it showed that the tuberculosis is spread through air. It is an airborne disease, and the person spreading it is an active TB case of pulmonary TB. I use the word active here because the person suffering from pulmonary TB, that the TB of the lungs, it is he only who is the source of infection. He only spreads the disease. When such a person coughs or sneezes or speaks loudly, the bacilli are released into the air as in the form of droplets, and it is inhaled by the other persons who are in the vicinity. And as we all know, nobody can survive without breathing. So when you breathe, these bacilli go inside. Find out all cases who are suffering from active pulmonary TB and treat them. Because once you treat them, studies have shown that within 3 days, the bacterial load comes so low that he will not be able to transmit the disease to the others. It spreads through air, so that's why we advocate that anyone having cough should be wearing a mask, and the others who don't have, when they travel to crowded areas, should also wear masks, or while coughing, you should cough into your elbow, cough etiquette and all. So then these things are always said, and as part of IEC we often do it, but the point is how many people follow this. So as long as this is an airborne infection, we have to do this, otherwise the infection will be spreading. Percent of the Indian population above 15 years, if we take, it is like 40 crore. Or even if we take for the islands, if the population is 2.5 lakh above 15, about 75,000 people will be suffering from, will be not suffering, I should not use the word suffering, will be having latent TB. But again, out of that, only 10%, like if it is Andaman 75 to 7,500 may develop TB at some point of their time. But we don't know who will develop. So that is the challenge here. Even if we identify the latent TB, we do not know who will develop the TB. So is there any way to find out if somebody is having latent TB or not? Yes, we have tests, but again, there are limitations. So as I described the profile, this latent TB people are absolutely fine. So again, to bring them for a test itself is a challenge. But we do have a test. It is called CyTB test. An injection is made on the front side of the forearm, and after 48 hours, we check whether there is swelling and induration more than 5 millimeter. If then, it is positive. So in addition to the lungs, the TB can affect any other organs of our body, and depending on the different organs affected, the symptoms will also be different. So how do we test for TB? It is very simple. We do a chest X-ray, and also we test the sputum sample for what is called the NAT test.
समारोह में मुख्य अतिथि ने रिमोट का बटन दबाकर 100 दिनों के इस अभियान को लॉन्च किया। इस मौके पर क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर वीडियो दिखाया गया। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह उम्मीद सांसों से जुड़ी होती है। तपेदिक यानी टीबी एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है, फिर भी आज भी लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। टीबी सिर्फ शरीर को नहीं, यह परिवार, रोजगार और सपनों को भी प्रभावित करती है। लेकिन सच्चाई यह है, टीबी से बचाव भी संभव है और इलाज भी। देश भर में हमारे स्वास्थ्य कर्मी दिन रात इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। समय पर जांच, सही इलाज और मरीजों को नई जिंदगी देने के लिए। एक मरीज के लिए यह सफर आसान नहीं होता। लंबे समय तक इलाज, समाज की झिझक और खुद को मजबूत बनाए रखने की जंग। लेकिन हर कहानी का अंत ऐसा नहीं होता। टीबी होने से पहले मालूम होने से मेडिकल आना चाहिए। जिस तरह की अभी खांसी होता था, खांसी दिखाएं, फिर हल्का हल्का बुखार आता था, उसके बाद हम एक्सरे कराया। एक्सरे करने के बाद टीबी पकड़ा गया, तो हम बोला मेरे तो कोई नहीं है, हमको कौन देखेगा। अच्छा खाना पीना, काम करने नहीं सकते या अच्छा खाना पीना भी नहीं मिलेंगे, तो हमको वो मेडिकल में रखिए। तो हम 1-1.5 महीना करीब मेडिकल में था। 1-1.5 महीना ट्रीटमेंट करवा के कंप्लीट करा के हमको बोला अभी तुम अच्छा हो गया, अभी तुम्हारा कोच पूरा करो, दूसरा बात से यहाँ आने का ज़रूरत नहीं। इनकी कहानी इस बात का सबूत है कि टीबी अंत नहीं, एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता जा सकता है। 2024 में अप्रैल महीना में मेरा मेडिकल चेकअप करने पर मेरे को माइल्ड टीबी पाया गया था। उसका बाद में मेरा इलाज शुरू हुआ, 6 महीना इलाज चला। उसका बाद में दोबारा चेकअप हुआ, उसमें क्लियर पाया गया। उसके बाद 2 बार रूटीन टेस्ट हुआ 6 महीना में, उसमें भी क्लियर पाया गया। अभी 2026 में अप्रैल महीने में तीसरा रूटीन टेस्ट होने वाला है और हम निश्चय संस्था से भी जुड़े थे। उसका बाद में टीबी डिपार्टमेंट से जो भी आर्टिकल डाइट मिलते थे वो टाइम पर मिल जाते थे और टीबी डिपार्टमेंट के स्टाफ हफ्ता में घर आके चेकअप करते थे, हेल्थ के बारे में पूछते थे। अगर खांसी के साथ में खून आए या लंबा खांसी बहुत दिन तक चलता है तो उनको ज़रूर मेडिकल आके चेकअप करना ज़रूरी है कि मेरा शरीर में क्या डिजीज़ चल रहा है। इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। निक्षय मित्र जैसी पहल के जरिए समाज भी आगे आ रहा है, पोषण, सहयोग और सम्मान के साथ। एक छोटी सी मदद किसी के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और हम लोग जो भी टीबी पेशेंट्स हैं उनको महीने का जो किट है वो प्रोवाइड करते हैं थ्रू DHS के द्वारा। और मेरा यही विनती है सभी द्वीपवासियों से, सभी लोगों से कि बी ए प्राउड निक्षय मित्रा। आप लोग भी सभी निक्षय मित्रा बनिए और हमारे समाज में जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनको हर महीने जो न्यूट्रिशन किट है वो देकर उनकी मदद करें। सितंबर 2022 से जब ये भारत सरकार ने मुहिम चालू की कि इंडिया को टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, इसमें हम तब से जुड़े हुए हैं। हर महीने हम तब से लेके अब तक लगातार पेशेंट्स को ये किट्स देते आए हैं, टीबी किट जो न्यूट्रिशनल किट है। और हमारा जो सपना है वो सेम भारत सरकार ने जो देखा है, सबसे पहले अंडमान को टीबी मुक्त बनाएंगे, उसी तरह भारत पूरा टीबी मुक्त हो जाएगा। यही हमारा सपना है जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। सभी लोगों से आग्रह है जिससे जितने लोगों की हेल्प की जाए प्लीज़ आगे आइए, निक्षय मित्र बनिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों को अपनी हेल्प पहुंचा सकते हैं। लोगों को अगर लग रहा है उन्हें टीबी हुआ है, टीबी इज़ टोटली क्योरेबल। टीबी पूरी तरह क्योरेबल है। जस्ट आपने नॉर्मल जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन है और न्यूट्रिशनल किट्स जो देते हैं, आपने पोषण आधार और ये नॉर्मल मेडिसिन ये खाएंगे, टीबी पूरी तरह जड़ से आप निकाल सकते हैं। टीबी इज़ नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, इट इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल। प्लीज़ अगर आपको खांसी है जो बहुत दिनों तक आ रही है, आप एक बार अपना जो सलाइवा थूक का टेस्ट कराइए। जीबी बंद में सुबह आइए, यहाँ में टेस्ट कराइए। अगर उसमें आता है प्लीज़ इसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए और आप 6 महीने में
टीबी से मुक्त हो सकते हैं। तो प्लीज़ सभी से आग्रह है, टीबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे नहीं हराया जा सकता है। इसे आगे आके अगर हम लड़ेंगे तो इसे कम्प्लीटली हरा सकते हैं। हमारे इस कैनरा बैंक को भी इस अभियान से जुड़ने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं DHS का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस बार हम इस अभियान का हिस्सा बनते हुए कैनरा बैंक ने इस पूरे साल के लिए हर महीने 50 टीबी पेशेंट को ये न्यूट्रिशनल किट प्रोवाइड करने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं हमारे उच्च अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से हम इस अभियान में अपना योगदान दे पा रहे हैं। और विशेष करके मैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो भी टीबी मरीज़ हैं, उन सभी पेशेंट से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आप भी इस अभियान से जुड़िए और हमारे इस टीबी मुक्त भारत अभियान में भाग लेकर टीबी को हराइए, जिससे टीबी हारेगा और देश जीतेगा। लक्षणों को पहचानें, लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना, समय पर जांच कराएं, इलाज पूरा करें और मरीजों का साथ दें। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें टीबी को हराने का, एक स्वस्थ भारत बनाने का। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। समारोह में आयुक्त सह सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी बीमारी सदियों ने मनुष्यों के साथ रही है। मानवता के खिलाफ इस जंग में जीतने की भावना को मन में ठानने के लिए उन्होंने बधाई दी। ये टीबी जो बीमारी है सदियों से ह्यूमैनिटी के साथ में रही है। ह्यूमैनिटी को उसने काफ़ी समय इसको पूरी मानवता के खिलाफ उसने एक जंग छेड़ी थी। तो उस जंग को हमने एक्नॉलेज करके उसको जीतने की जो हमने ये मन में अपनी भावनाएं ठान ली है, उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे डॉक्टर लाल ने पहले कहा, जो उनका आखिरी सेंटेंस था वो ये था कि लेट्स एंड टीबी टुगेदर। ये आगे शब्द था टुगेदर। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम टीबी को अंत कर पाएंगे, टीबी का अंत कर पाएंगे? 20 साल पहले जब मेडिकल कॉलेजेस में बाकी जगह पे जब टीबी के बारे में जिक्र करते थे तो ये बोलते थे कि हम टीबी को कंट्रोल करेंगे, लेट्स कंट्रोल द टीबी। वही सरकार का प्रोग्राम था कि हम इसको कंट्रोल में लाना है। बट देश ने जो तरक्की की है उसके चलते चलते अब हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि अभी टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये जो पड़ाव है वो काफ़ी मेहनत के बाद में आया है, काफ़ी साइंटिफिक कम्युनिटी के इंटरवेंशन से आया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे ये टीबी के एलिमिनेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक होगी, ये ऐसे प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसमें कम्युनिटी भी जुड़ी है। कोई भी डिसीज़ होता है बॉडी में तो वो केवल डिसीज़ एक ऑर्गेनिज्म आता है और बॉडी के सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन होता है। तो इस बार जो स्पेसिफिकली जो हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हैं वो निक्षय मित्रा जो हैं हमारे, जो कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट करते हैं। तो जब ये कोई भी लड़ाई कम्युनिटी मिल के लड़ती है तब किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का अंत होना ये स्वाभाविक है। तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ निक्षय मित्रास की, जिन्होंने पिछले साल से कई सालों से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एंड वी मस्ट गिव देम अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज टू ऑल द निक्षय मित्रास हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल है जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारी आशाएं हैं और जो नर्सिंग के बाकी दूसरे जो लोग हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव उनका कंट्रीब्यूशन होने की वजह से ही ये टीबी का अंत होना संभवता की तरफ जा रहा है। जो 40-45 की जिनकी उम्र है वो लोग जानते होंगे कि उनको जब आप वैक्सीनेशन करते हैं, स्मॉल पॉक्स नाम का भी एक वैक्सीन दिया करते थे। बट अभी स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसके ऊपर ऑलरेडी हमने जीत हासिल कर दी है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ दिनों में टीबी का भी जो वैक्सीन है
जो BCG वैक्सीन है आगे आने वाली 20-30 साल के बाद की जनरेशन की शायद ज़रूरत ना पड़े। मैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ एंड दे ऑल्सो डिजर्व टू बी अपलॉडेड फॉर देयर लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस। जब हम लोगों को एक्टिव जो सर्वे करना था, क्या करना था डॉक्टर साहब, वल्नरेबल पॉपुलेशन की जो स्क्रीनिंग करनी थी, तो उसमें अंडमान निकोबार वो नंबर 1 उसकी रैंकिंग है, जिसके लिए मैं सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अफसरों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एंड यू ऑल डिजर्व स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अचीविंग दिस फीट। तीसरा एस्पेक्ट है कि हमारी तादाद बहुत कम है। ऑल्दो हम लोग बहुत आइलैंड में हमारा स्प्रेड आउट हुआ है, बट जो हमारी पॉपुलेशन है 5 लाख ही पॉपुलेशन है। तो विद दिस लॉन्च ऑफ टीबी मुक्त भारत अभियान, ये 100 डेज जो हमारी अगली कैंपेनिंग होगी, तो उस कैंपेन को हम बहुत मिशन मोड पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एंड वी विल अगेन रिक्लेम वी विल डिफेंड आवर नंबर 1 पोजीशन दैट वी हैव एक्वायर्ड इन 1 पैरामीटर। अब हम लोगों को नेक्स्ट पैरामीटर पे जाना है, जो है एक्टिव केस फाइंडिंग। इन पैरामीटर्स पे भी आप सभी लोग मेहनत करके इसको आप बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करोगे, ये मुझे आशा ही नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंस भी है कि द हेल्थ डिपार्टमेंट विल एक्टिवली अचीव एंड रिटेन दैट टारगेट। जो स्पेसिफिकली जो यंग बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ नर्सिंग कॉलेजेस के, तो मुझे अपने दिन याद आ रहे थे। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन उस टाइम पे बहुत पब्लिक नैरेटिव का ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट था कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन को बहुत गंभीरता से उस समय पे काम किया जा रहा था। तो जब भी ये पल्स पोलियो का प्रोग्राम होता था, हम लोग सभी कॉलेज में बढ़िया से नहा धो के नए कपड़े पहन के आते थे कि नाउ वी आर पार्ट ऑफ दैट बिग प्रोग्राम, जिसके तहत पूरी ह्यूमैनिटी को इसको बदलाव होने वाला है। तो मेरे सारे बच्चों को देख के और उनको भी मैं ये अपील करता हूँ कि एक्टिवली, नॉट जस्ट कोई एक दिन का प्रोग्राम है, इस तरीके से करें। आप एक जो ह्यूमैनिटी को जिससे बचाव होगा उस एक्टिविटी में, उस गतिविधि में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बोला कि होल ऑफ गवर्नमेंट जो अप्रोच है, उसमें जो निक्षय मित्रा जो हैं, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि दे आर प्रोवाइडिंग दिस न्यूट्रिशनल सपोर्ट। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया था कि जो स्टडी हुई थी उसके पहला जो बेसिक फैक्टर है कि क्यों किसी को टीबी होती है, तो माल न्यूट्रिशन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसकी वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको टीबी होगा या नहीं होगा। जो नॉन एक्टिव केसेस हैं, जो उसके कैरियर्स हैं, वो किसी और को मतलब इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट होगा या नहीं, वो दैट डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। तो इस दिशा में जो माल न्यूट्रिशन के लिए निक्षय मित्रा जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने इस एक्टिविटी को इस बार भी सस्टेन करेंगे। प्लस मैं अपील करता हूं जनरल सोसाइटी को भी, वो भी इस टीबी मुक्त अभियान में भारत सरकार के साथ में जुड़े। और अंत में जो सारे हेल्थ केयर के जो हमारे वर्कर्स हैं, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे ये उम्मीद है कि आप इस 100 डेज़ के दौरान अपनी पूरी मेहनत से, लगन से इस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में काम करोगे, सो दैट टीबी एलिमिनेशन फ्रॉम अंडमान आइलैंड बिकम्स आवर प्राइमरी एंड वी बिकम द फर्स्ट टेरिटरी इन द कंट्री टू अचीव दैट गोल। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम में हम we will be the first one in the country to be the leader in the healthcare delivery in specifically about this program. इस अवसर पर टीबी जागरूकता स्किट प्रस्तुत किया गया।
तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास हो जैसे पास है से मेरा कोई एहसास हो जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको तेरी मैं अरे थोड़ा काम काज कर लिया कर, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर गाने से घर में रोटी नहीं आएगी। जा कहीं जाकर काम काज ढूंढ ले, नहीं तो कटोरा लेकर भीख मांगता रहेगा। जब देखो चिल्ला चिल्ला कर गाते रहता है और दिन रात कांसते रहता है। क्या करूं मैं इसका? देख लेना पिताजी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, टीवी पर आऊंगा, फिर सारी दुनिया मेरी आवाज टीवी पर सुनेगी। हाँ हाँ वहां देख लूंगा टीवी पर तुमको। बाबूजी प्रणाम। लो एक और नालायक आया, एक गा रहा है एक नाच रहा है। तुम दोनों की जोड़ी सही है। तू भी कटोरे ले ले, बहुत काम आएगा भीख मांगने के लिए। राम जाने इन दोनों क्या होगा। अरे रोहित, क्या भाई, क्या चल रहा है? बस यार वही ऑडिशन की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अरे भाई तू एक हफ्ते से खास रहा है, जा जाकर मेडिकल दिखा ले, दवाई उवाई ले ले। नहीं नहीं यार, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। कल ऑडिशन है, अगर मैंने अच्छा गाना गाया तो मुझे ब्रेक मिल सकता है। वहां बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर आने वाले हैं। क्या बात कर रहा है? अरे सही बात कर रहा हूं। सुना है वहां प्रीतम चैटर्जी आने वाले हैं, और सुना है बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है उनका। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तो तुम्हारा लकी चार्म हूं ना। तू जब बड़ा सिंगर बन जाएगा ना, तो मुझे एक 55 इंच का LED टीवी लेकर देगा ना। उसी टीवी में तुम्हारा गाना देखूंगा। क्यों, क्या बोलता है? हाँ चल ठीक है। दे दूंगा दे दूंगा। ठीक है ठीक है। মোবাইল বডি গুলো 5 টাকা দাম, পায়ে তুড়া হাতের বালা থাকে যদি সিটি গলে চেন দিয়ে যাবেন, তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নেকো বুবু ভাজা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম দিয়ে বাদাম। होरी बाबा, नाच नाच के हमरा कॉलेजा बाहर आ गया। हे बाबू मोशाए, आज अगर तुम्हारा सिंगर सही से नहीं गाया तो हम तुम्हारा कोरियर खा लेगा। जैसा कोकारी मच्छी खाता है ना, वैसा तेरा कोरियर खा लेगा, याद रखना। अरे दादा, इस बार कच्चा नहीं पक्का सिंगर लाया हूँ। एक बार आप उसे सुन लो, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। अरे हमरा हृदय तो ठीक है, अगर वो अच्छा गाया तो हम उसको अरिजीत बना देगा, अगर खराब गाया तो तुमको रानो मंडल बनाएगा, याद रखना बरखुरदार। जी दादा। रोहित, मेरी बात सुन, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम सक्सेस हो गए तो तुम्हारा कैरियर बहुत आगे चले जाएगा। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए और साथ में मेरे भी। हम दोनों का कैरियर अब तुम्हारे हाथों में है। जी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर। बेस्ट ऑफ लक। रोल साउंड म्यूजिक। तूने दिल के रखे पतंग मेरे, दिल पे चलाई छुरियां, दिल पे चलाई छुरियां। तुझको
तुझको तरस ना आया, न देख मेरी मजबूरियाँ, न देख मेरी मजबूरियाँ। तूने दिल के रखे पतंग मेरे, और दिल पे चलाई छुरियाँ, और दिल पे चलाई छुरियाँ। अरे सुपर हिट दादा क्या गाना गाया। ये लड़का को हम सड़क से उठा के स्टार बना देगा। इसका अंदर तो माता सरस्वती घुस गया, लेकिन बाद में शक्ति कपूर लेके आ गया। तुम गोंडोगोल कर दिया लास्ट में बच्चा। हमको एक बात बताओ, तुम गाते गाते खांसता कि खांसते खांसते गाता? ये कहीं तेरा खानदानी बीमारी तो नहीं है? जी सर, वो मेरी आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है सर। अरे तबीयत खराब है तो कॉफ सिरप ले लेना, सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता। अगला महीना तुमको कोलकाता आना है, तुम आना, खांसी को नहीं लेके आना, समझा? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारा फिल्म का नाम जिगर का लुटेरा। तुम्हारा खांसी से कहीं फेफड़ा का लुटेरा ना हो जाना, ठीक है? जी जी सर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस खांसी का इलाज करा लो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं, वरना तेरे करियर में फुल स्टॉप लग जाएगा और कफ सिरप के एड में टीवी पर दिखोगे। हाँ यार, तुम ठीक कहते हो। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, आइए आइए। डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है रोहित। ये एक हफ्ते से बड़ी जोरों से खांसता रहता है। डॉक्टर साहब इसका इलाज करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। ये खांसी आपको कब से हो रही है? जी डॉक्टर साहब, लगभग 10-12 दिन से खांसी चल रही है। अच्छा, तो आपको ऐसे लगा है कि इन बीच में आपका वेट लॉस हुआ है या वीकनेस बहुत ज्यादा हो रहा है आपको? जी डॉक्टर साहब, कमजोरी तो होती है, रात को थोड़ा बुखार भी रहता है, और लग तो रहा है कि मेरा वजन भी कम हो रहा है। अच्छा ठीक है रोहित, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? साथ में एक्सरे भी है, ये आप करवा लो, फिर इसका रिपोर्ट मुझे दिखा देना, ठीक है? जी जी डॉक्टर साहब, जरूर। मे आई कम इन सर? हाँ आ जाइए आ जाइए। सर ये कुछ टेस्ट आपने करवाने के लिए कहा था सर, ये रिपोर्ट आई है इसकी। हाँ दिखाइए। देखो रोहित, आपके रिपोर्ट से पता चला है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है। क्या क्या सर? ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। डॉक्टर साहब, मैं तो किसी तरह का नशा भी नहीं करता। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा ये सब मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया सर, लेकिन मुझे क्यों ये बीमारी हुई? जरूरी नहीं है कि टीबी उसी को होता है जो धूम्रपान आदि का सेवन करता है। डॉक्टर साहब, अगले महीने मेरे गाने का रिकॉर्डिंग है सर, और ये मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। मैंने बचपन से इस दिन का इंतजार किया सर। क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? देखो रोहित, इस वक्त तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो यह बीमारी तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि टीबी का इलाज हमारे देश में मुफ्त में होता है। बस जरूरत है समय पर जांच कराने की और हमारे द्वारा दी गई दवाइयों का कोर्स पूरा करने की, ठीक है? पौष्टिक आहार खाएं और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। खांसते या छींकते समय मुंह को ढके और साफ सफाई पूरा रखें। और सबसे जरूरी बात, दवाई बीच में बिल्कुल ना छोड़े।
रोहित, मैंने दवाइयां लिख दी है, इसे ले लो और आज ही से खाना शुरू कर दो। जी। और एवरी वीक चेकअप करवाते रहना। जी जी डॉक्टर साहब। किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार खांसी, बलगम में खून, वजन कम होना या रात में पसीने आए तो वह टीबी के लक्षण हो सकते हैं। टीबी से डरने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर यह संदेश फैलाएं, खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो तो तुरंत जांच कराएं। टीबी का इलाज संभव है, बस पूरा कोर्स करना जरूरी है। और निक्षय पोषण योजना के तहत रोगी को हर माह उसके इलाज के लिए 1000 रुपए भी प्राप्त होगा और निक्षय मित्र योजना के तहत उसे हर माह का राशन भी दिया जाएगा। और 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद रोहित भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो आइए रोहित से मिलते हैं। हाय मैं ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों को तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। आइए टीबी को हराएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे। मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का वार्षिक प्रतिवेदन को जारी किया। प्रतियोगिता के विजेताओं, चिकित्सकों, टीबी से ठीक हुए मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों में स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया। Second place goes to Tega government. Second place goes to J. Ananya. Third place goes to Sharon George. Are onto the stage. We now come to a very important and कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने टीबी उन्मूलन की प्रतिज्ञा ली। मैं अपने केंद्र शासित प्रदेश में टीबी का उन्मूलन करने और अपने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के बीच टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने का अपनी वचनबद्धता को दोहराता हूँ। मैं टीबी से प्रभावित लोगों और परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं यह भी सुनिश्चित करूँगा कि वे लोग फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकें। मैं सत्यनिष्ठा से प्रण लेता हूँ कि टीबी के उपचार को और भी सुलभ कराने के लिए अपने केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करूंगा। मैं टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग करूंगा, जो मेरे केंद्र शासित प्रदेश
को टीबी मुक्त बनाएगा। मैं भारत को टीबी मुक्त बनाने के स्वप्न को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ राज्य स्तरीय समारोह संपन्न हुआ। On behalf of the National Tuberculosis Elimination Program, Andaman Nicobar Islands, it is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to all of you for joining us on this significant occasion of World Tuberculosis Day and the launch of 100 Days campaign of TB Mukt Bharat Abhiyan. Today, we have been truly inspired by the enlightening words of our chief guest, Dr. Sachin Shinde, Commissioner cum Secretary Health and Andaman Nicobar Administration. Sir, your invaluable insights and suggestions will serve as a guiding light for us to achieve TB-free Andaman Nicobar Islands. Thank you for your gracious presence and for motivating us towards this crucial goal. I express my sincere gratitude to Srimati Mandana Rao, Secretary Health and Mission Director UTHM, for her gracious presence and continued motivation to give our best to the program. Thank you, ma'am. I would like to express my gratitude to Dr. H.M. Siddharaju, Director of Health Services, for his unwavering support and encouragement. Thank you, sir. I sincerely thank Dr. M.K. Saha, Director ANIMS, for his presence and constant guidance. I express my sincere thanks to Dr. Avijit Roy, Deputy Director Health and State Immunization Officer, for his gracious presence and valuable support in making adult BCG vaccination campaign a success. I extend my sincere appreciation to ICMR Regional Medical Research Center, Sri Vijayapuram, for their continued support and leadership. I sincerely thank Dr. Lal, Joint Secretary NTEP, for his insightful presentation on the current status of TB in Andaman Nicobar Islands and the way forward towards its elimination. A special mention to our Nikshay Mitras for their unwavering support in realizing the vision of our Honorable Prime Minister. Your contribution has been invaluable in supporting TB patients and strengthening our efforts towards elimination.